Okay. 5.18. Okay, one student has done. Average speed. What is average speed? Total distance upon total time. If body covers 2 meter per second speed in t time, that means distance becomes 2t. 7 meter per second speed in 3t, it becomes 21t. 4 meter per second in 2t becomes distance becomes 8t. The total distance is 2t plus 21t plus 8t. And what is total time? Total time is t plus 3t plus 2t becomes 60. Becomes 31t by 60. Tt gets cut. 5.16 meter per second. Okay. So very good. Okay. This was first question. This is a question number 2. Yesterday I told average speed और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है. कल मैं ये बता रहा था आपको. नाउ टुडे आई एम चेंजिंग अ क्वेश्चन. व्हेन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कांट बी सेम. ये दोनों कब सेम नहीं होंगे? When we can have average speed and average velocity circular path. Okay. When direction is not same. Okay, वही circular path हो गया. See, simple. When object is not moving in a straight path. Yes, not moving in a straight path. तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होगा. सपोज मैं ए से बी गया. यस, यूजली वी कैन से व्हेन डिस्टेंस इज नॉट, व्हेन टोटल डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो वी कैन से. सी, अगर डिस्टेंस is not equal to displacement, when total distance is not equal to total distance is not equal to total displacement, when total distance is not equal to total displacement, then average velocity and average speed will not be same. Okay, so what I was telling, suppose I go from A to B, I'm moving in straight path, then I go from B to C, C to D in a straight path, then what will happen? Average speed and average velocity will be same. But now I go from A to B, B to C, C to D, then I come from D to B again. Now I change the direction. Now I am not moving in a straight path. Now I go right, then I comes left. A to B, B to C, C to D, D to B. So this till here I was moving on a straight path. Now I again change my direction or I return back. So from D to B, when I do, my distance and displacement, total distance and total displacement will not be same. Then in this case, my average velocity will not be equal to average speed. Okay. So let's do some questions. Can you solve this question? Can you tell me the answer? This is first part. This is second part. Can you tell me first part, average velocity and average speed? Second part, average velocity, average speed.
A to B, B to C, C to D. 6 plus 4 plus 2. What is total? See, question number 1. So since object is moving on a straight path, both will be same. Both will be same. So average velocity and average speed both are same, which is equal to 12 by 20, equal to 0.6 meter per second. Correct? Yes, 3 by 5, 0.6. 3 by 5 also is fine. In this case, A to B, B to C, C to B. Now if you see, average velocity will be, finally this is the displacement. 6 by 10 becomes 0.6, and average the speed will be 14 by 10 equal to 1.4 meter per second. Because total distance I am traveling 14 and total time is 10 for both. Okay, how many understood this concept? How many understood this concept? आ रहा है समझ में? Okay, very good. Okay, can you answer this question? A? Yes, A is the correct answer. Because average velocity. टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है. टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है. जीरो आंसर होगा. यस, डोंट गेट कंफ्यूज. वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बिकॉज इट्स गोइंग फ्रॉम होम अगेन रिटर्निंग टू होम. ठीक है. ओके, नाउ आई क्विकली समराइज. स्ट्रेट पाथ, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है. एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड भी सेम है स्ट्रेट पाथ में. बट when path is not straight, then they cannot be same. They cannot be same. एंड स्ट्रेट पाथ में ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है. अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं होगा. वाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा? बिकॉज डायरेक्शन चेंज होता है. Okay, now I'll give you some questions. You have to tell me true and false. Okay, nearly we will do something approx 4, 8, 12, 16, 20 to 30. अगर ये आ गया तो पूरे कॉन्सेप्ट आपके मतलब क्लियर है. ओके ओके, ट्रू और फॉल्स से पहले ये क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर एवरेज स्पीड? बी. दिस इज फॉर एवरेज वेलोसिटी. ओके, बिकॉज इस क्वेश्चन में दिया नहीं स्ट्रेट पाथ. अगर स्ट्रेट पाथ दिया होता तो दोनों से ए और बी दोनों हो जाते आंसर. अगर स्ट्रेट पाथ दिया होता. ओके, नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन. You have to tell me true and false. We'll go step by step. Consider the following statement and select the incorrect statement. That means आपको identify करना है कौन सा गलत है कौन सा सही है. Magnitude of instantaneous velocity of a particle is equal to instantaneous speed. ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है. I just cover. देखो, instantaneous velocity is always equal to instantaneous speed.
एक इंस्टेंट पे चाहिए मुझे, एक इंस्टेंट पे। सपोज पार्टिकल मेरा ऐसे मूव कर रहा है, मुझे एक इंस्टेंट पे मतलब इस टाइम पे क्या वेलोसिटी थी, इस टाइम पे क्या स्पीड थी। तो देखो जब मैं किसी टाइम पे फाइंड करता हूँ, सपोज मैं t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया एंड t इक्वल टू 10 पे यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा सेम होता है। ओके, सेकेंड वन, the magnitude of average velocity in an interval is equal to its average speed in that interval। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इनकरेक्ट, क्योंकि हमें पता नहीं ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है या कर्व्ड है। फॉल्स है, फॉल्स। थर्ड वन, is it possible to have a situation in which the speed of particle can never zero but average speed is in interval 0? फॉल्स। देखो अगर पार्टिकल की स्पीड होगी तो वो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। सी, अगर पार्टिकल की स्पीड होगी तो वो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे उसने डिस्टेंस कवर कर दिया, जैसे उसने डिस्टेंस कवर कर दिया कुछ टाइम पे, तो एवरेज स्पीड तो आ ही जाएगा, एवरेज स्पीड तो आ ही जाएगा। आ रहा है समझ में? राइट। देखो अगर स्पीड जीरो नहीं है तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। हाउ मेनी अंडरस्टूड थर्ड पार्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट आया समझ में? ओके। देखो वेलोसिटी के केस में अलग हो जाता है सिचुएशन, आई विल कम टू दैट पार्ट। Is it possible to have a situation in which speed of particle is zero but average speed is not zero? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सपोज मैं एक जगह से स्टार्ट किया, दूसरी जगह पहुंचा, मेरी इनिशियली स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड थी, मैं ए से बी गया, जाके रुक गया, 0 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन मैंने ए से बी जाने में 1 घंटा लगाया और डिस्टेंस 2 किलोमीटर कवर किया। देखो पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे मेरा स्पीड जीरो है, मेरा पॉइंट बी पे स्पीड जीरो है, लेकिन मैंने एवरेज स्पीड है, मेरा मेरा एवरेज स्पीड है। क्या है मेरा एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये ट्रू होगा। देखो स्पीड जीरो हो सकता है, मैं देखो ए से बी जा रहा हूँ, मैं बीच बीच में रुक के जा रहा हूँ, चलता हूँ फिर रुकता हूँ, फिर चलता हूँ फिर रुकता हूँ, फिर चलता हूँ फिर रुकता हूँ, फिर चलता हूँ फिर रुकता हूँ। टोटल डिस्टेंस तो कवर कर रहा हूँ ना मैं कुछ टाइम पे। हो सकता है यहाँ स्पीड जीरो हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस कवर किया तो मेरा एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो ये दोनों मैथ स्टेप अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। स्पीड जीरो होगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो नहीं हो सकता। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, अब मैंने कंडीशन चेंज कर दी है। नाउ आई कंसिडर दैट ऑब्जेक्ट इन चारों केस में स्ट्रेट चल रहा है, ऑब्जेक्ट इन चारों केस में स्ट्रेट चल रहा है। कैन यू टेल मी फर्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स? First one is true. Now when object is moving in a straight path, then both are, then it is true. Magnitude of average velocity is equal to average speed. True. Straight path में average velocity और average speed same होती है. Is it possible to have situation with speed of particle is never zero but ये तो वही रहेगा false, और ये
2, ये तो सेम रहेगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है आपको स्केलर और वेक्टर का, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, ये सब कॉन्सेप्ट। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना मुझसे। ओके, लेट्स गो अहेड। Select the incorrect statement from the following. पहला ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। पाथ लेंथ नहीं होता है, पाथ लेंथ स्पीड में होता है, एवरेज स्पीड में। इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पहला क्या है? दूसरा ट्रू है, स्पीड यूजुअली ज्यादा ही रहता है, स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, करेक्ट। दूसरा करेक्ट है, वेरी गुड। तीसरा स्टेटमेंट, इज इट पॉसिबल टू हैव in a given direction non-zero velocity and have a zero speed? No. False. The magnitude of average velocity is equal to average speed. False. Only straight path में ये possible है, but I don't know क्या path है, random path है ना? Yes, random path है। See, straight path आपको specify नहीं किया है। C is the option. Okay. Now this question I change. I convert this question into straight path. Object is moving in a straight path. Object is moving on a straight path. Average velocity is path length divided by time interval. क्या ये सही है? When object is moving on a straight path. Is it true or false? Yes, true है। क्यों? Straight path में path length, distance, displacement सब same है। Straight line में path length, displacement same है। Okay. Speed is greater than magnitude of velocity. Speed is greater than the magnitude of velocity. False. Straight path में speed और velocity same होता है। Straight path में speed और velocity same होता है, ठीक है, इक्वल होता है। यस। थर्ड, a particle moving in a given direction with a non-uniform velocity can have zero speed. False. Straight path में तो वेलोसिटी और स्पीड सेम है, अगर वेलोसिटी जीरो तो स्पीड जीरो, वेलोसिटी नॉन जीरो तो स्पीड नॉन जीरो। स्ट्रेट पाथ, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ट्रू, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है। ओके, किसी को कोई डाउट टिल हियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? सबको आ रहा है समझ में? ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। Which of the following statement are correct? ए बी सी डी है, आपको ट्रू फॉल्स पता करना है पहले। अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी स्टिल बी एक्सेलरेटेड। इज इट पॉसिबल? ट्रू और फॉल्स? बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी स्टिल बी एक्सेलरेटेड, ट्रू है। आई कैन गिव यू टू एग्जांपल्स। देखो, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट एनी व्हीकल, जब गाड़ी को जब स्टार्ट करते हो, as soon as you start a vehicle, acceleration is not zero but velocity is zero. You agree or not? When you just start the vehicle, आप किसी व्हीकल को जब स्टार्ट करते हो, राइट, आप जब बस व्हीकल को स्टार्ट करते हो तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, वेलोसिटी जीरो। सिमिलरली देखो, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, at that instant, अगर मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं,
टाइम को बहुत छोटा कर दूं, तो वेलोसिटी इज कंसिडर्ड जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो कैसे जाती है बॉडी? सपोज आपने इनिशियली कोई वेलोसिटी v दिया, उसको ऊपर फेंका, यू थ्रो इट अप, ऊपर जाते तो वेलोसिटी क्या हो जाता है टॉप पॉइंट पे? व्हाट इज द वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट? जीरो। वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट इज जीरो, बट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग। देखो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, क्या? नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, g इक्वल टू 9.8। इंस्टेंटेनियस मोशन कुछ नहीं होता है, वो डेरिवेटिव वाला वो सब मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, मैं तो मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पे आई एम वर्किंग। तो देखो बॉडी ऊपर फेंका, ग्रेविटी हर पॉइंट पे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, मतलब एवरी टाइम देयर इज एक्सेलरेशन, दैट इज ऑपोजिट, मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटी विल एक्ट, देन ऑल्सो ग्रेविटी विल एक्ट, राइट? देन ऑल्सो ग्रेविटी विल एक्ट। दैट मीन्स एट दिस टॉप पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अब पेड़ पे एप्पल लटका है, जस्ट वेट अ मिनट। देखो पेड़ पे एप्पल लटका है, जब टूटता है, इनिशियली जस्ट व्हेन इट जस्ट अबाउट टू फॉल, वेलोसिटी जीरो रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटी रहेगा, 9.8। ये पॉइंट याद रखना। सो दिस इज ट्रू। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जीरो रहेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट t इक्वल टू जीरो, एट दैट इंस्टेंट, एट t इक्वल टू जीरो इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या है। जैसे देखो मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है जमीन पे, तो क्या होता है? उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? सपोज t इक्वल टू जीरो पे 0 मीटर है, t इक्वल टू 2 पे v1 है, t इक्वल टू 3 पे v2 है, t इक्वल टू 4 पे 3 है। तो मैं बोलूंगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। कितनों को आ गया फर्स्ट समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट? Okay. A body can have a constant velocity, still have a varying speed. A body can have a constant velocity, false. कई बच्चों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। Body can have a constant speed, still have a varying velocity. This is true. When there is change in direction, body can have a constant speed, still have a varying velocity. That is true. Fourth, the direction of velocity of a body cannot change when its acceleration is constant. False. See, acceleration लगेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा ना। When body is changing direction means there has to be acceleration. There has to be some acceleration. Without acceleration, body cannot change direction because velocity is changing. Velocity change हो रहा है, जब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब देयर हैज टू बी एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ही। सो विच वन आर ट्रू? फर्स्ट एंड थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो कुछ दो क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, a body can have a zero velocity still be accelerated. True. Yes. Body can have a constant velocity still have a varying speed. स्ट्रेट पाथ में हो सकता है नहीं, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। A body can have a constant speed still have a varying velocity. False.
A direction of velocity of a body cannot change when its acceleration is 0. True. True, right? Because डायरेक्शन चेंज नहीं होगा अगर एक्सेलरेशन 0 है. जैसी एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ओके, लास्ट. A body can have a constant velocity but variable speed. थर्ड क्या क्या है? स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ में वेलोसिटी और स्पीड सेम होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड. पिछले में देखो जब नॉन स्ट्रेट पाथ है, तो कह सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज होगा. बट स्ट्रेट पाथ में दोनों सेम होते हैं. बट इन स्ट्रेट पाथ बोथ आर सेम. प्रज्वल आया समझ में? चलो ओके. यस, दिस क्वेश्चन. Which of the following B? Okay. A body can have a constant velocity but variable speed. गलत. Body can have a constant speed but variable velocity. True. A body can have a zero velocity but non-zero acceleration. True. Very good. Very good. Okay, अगर मैं इसको स्ट्रेट पाथ में कर दूं देन पीछे वाला आया समझ में स्टूडेंट्स? राइट. आई होप आई एम नॉट फास्ट. मेरी स्पीड फास्ट नहीं है. चलो लास्ट. Yes, 3 only in a straight path. Yes. A body can have constant velocity but variable speed. Galat. A body can have a constant speed but variable velocity. Galat. Body can have a zero velocity but non-zero acceleration. True. So only 3. वेरी गुड. तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब हम जाते हैं वेक्टर्स इन काइनेमेटिक्स. देखो वेक्टर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ टू डायमेंशन मोशन ऑफ अ प्लेन होता है. देखो द मोशन ऑफ अ प्लेन होता है, मोशन ऑन अ प्लेन. तो आपका ऑब्जेक्ट क्या ऐसे मूव करता है, एक्स वाई दोनों पे ऐसे रेंडमली मूव करता है. तो क्या है, आपको अगर इसका हर पॉइंट पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन निकालना है तो आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. आपको वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. बिना वेक्टर्स के आप नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट विदाउट वेक्टर्स. अब देखो व्हेन वी से मोशन ऑन अ प्लेन, देखो याद रखना मोशन ऑन x axis is and y axis are independent. मोशन ऑन x axis and y axis are independent. मतलब क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, अगर इसको मैंने x एक्सिस की तरफ पुश किया, कुछ एक्सेलरेशन दिया, धक्का दिया, सपोज धक्का दिया, जब भी क्या होगा, इसकी जो y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होगी. बस क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप लाइक दिस, इट विल स्टार्ट गोइंग लाइक दिस. बट ऊपर जाने का वेलोसिटी है, जो y एक्सिस में वेलोसिटी है, वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. वन मोर एग्जांपल.
सपोज एक बॉल को मैंने ऐसे छोड़ा जमीन पे, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को मैंने ऐसे फेंका तो वो कैसे गिरेगा, वो ऐसे जाके गिरेगा। उस पर भी नीचे कितना ग्रेविटी लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो इन दोनों में जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मोशन है, वो सेम रहेगा। डाउनवर्ड मोशन सेम रहेगा मतलब क्या, दोनों इक्वल टाइम पे जमीन पे गिरेंगे। दोनों इक्वल टाइम पे जमीन पे गिरेंगे, दोनों इक्वल वेलोसिटी से जमीन पे गिरेंगे। दोनों इक्वल वेलोसिटी से जमीन पे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जो डाउनवर्ड मोशन है, जो वाई एक्सिस पे मोशन है, जो वाई एक्सिस पे मोशन है वो सेम है दोनों का। इसमें बस मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे कुछ इफेक्ट नहीं रखा है, इधर मैंने एक्स एक्सिस पे थोड़ा इफेक्ट डाल दिया, लेकिन वाई एक्सिस पे दोनों इंडिपेंडेंट है। तो आप हमेशा याद रखना, मोशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मोशन ऑफ वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट। उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? एटलीस्ट जो मैं समझा रहा हूं, इसको थोड़ा और आप समझ जाओगे धीरे धीरे। ओके, तो आप ये चीज याद रखना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ बॉडी moving from coordinate 2, 2 to 4, 5. Now see how we find the displacement vector of a body moving from coordinate 2, 2 to 4, 5. Now if you see 2 और 4 मेरे x एक्सिस है, ये 2 और 5 मेरा y एक्सिस है। तो मेरा x एक्सिस में कितना मोशन हो रहा है, मेरा x एक्सिस में कितना मोशन हो रहा है 2, y एक्सिस में कितना मोशन हो रहा है 3। तो मैं कैसे निकालूंगा, 2i कैप प्लस एक्स एक्सिस का मोशन हम आई कैप से बताते हैं, वाई एक्सिस का मोशन हम जे कैप, कितना हो जाएगा 3 जे कैप। सो दिस इज माय वेक्टर टेलिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 आई कैप टू 3 जे कैप। मतलब क्या, यहाँ पे अगर इफ आई सी दिस इज माय 2, 2 एंड 4, 5 इज दिस, तो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है 2, 2 टू 4, 5। बट हाउ मच इट हैज ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, how much it has traveled along x axis 2 and how much it has traveled along y axis 3. So 2 I cap tells how much it has traveled along x axis, 3 j cap tells how much it has traveled along y axis. आ रहा है समझ में? ओके, एक को नहीं आया, एक को आ गया। कितनों को आ गया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ओके, एक को नहीं आया, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। ये वेक्टर्स आता है जैसे फिजिक्स में थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, उससे पहले जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। तो ठीक है, अगेन आई टेल, मेरा ऑब्जेक्ट 2, 2 पे था, 4, 5 पे जा रहा है। तो देखो 2, 2 से चल के 4, 5 पे चला गया। एक्स एक्सिस पे कितना मोशन है उसका, 2 से 4, मतलब क्या 2 यूनिट्स। एंड वाई एक्सिस पे कितना है, 2 to 5, 3 यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स चला है, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स चला है। तो मोशन क्या हो जाएगा, 2 आई कैप एक्स एक्सिस में, 3 जे कैप वाई एक्सिस में। ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज ये ए है, ये बी है, तो मेरा ए बी वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, नाउ आई टेक, now what I do, now I take these 3 points as A and these 3 points as B.
कैन यू टेल मी, सॉरी ये अभी छोड़ दो, दिस यहाँ पे मैं आऊंगा, आई विल कम टू दिस वन. फॉर दिस टू, a is 2,3, b is 4,6, here a is 2,2 and b is -1, -5. Can you tell me a b vector for both of them? Can you tell me a b vector for both of them? पहले मैं क्या है 2,3 से 2,3 से 4,6 पे जा रहा है, समथिंग लाइक दिस. मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो b -a कर दूंगा, क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j. वैसे यहां से मैं कहां पे जा रहा हूं 2,2 से दूसरे में, इन सेकेंड आई एम गोइंग फ्रॉम 2,2. देखो आप बिना इसके भी कर सकते हो बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं हाउ वी वर्क इन प्लेन. 2,2 से -1, -5 जा रहा हूं, ऐसा. क्या हो जाएगा ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ए बी. देखो मैं एरो क्यों बना रहा हूँ, वाई मेकिंग एरो, मैं मोशन बता रहा हूँ ए से बी जाने का, ए से बी जाने का, ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है. क्या हो जाएगा ए से बी -3i -1 -2, राइट, -1 -2 -5 -2 क्या हो जाएगा -7j. 1 में से 2 माइनस किया, 5 में से 2 माइनस किया, ये मेरा ए बी वेक्टर मिल गया. हाउ मेनी अंडरस्टूड, किसी को कोई डाउट? अब देखो ये -3 क्या बता रहा है, -3 क्या बता रहा है, देखो मैं लेफ्ट साइड मूव किया हूं, देखो एक्स एक्सिस पे कितना मोशन है मेरा, ये 3, वाई एक्सिस पे कितना मोशन है, ये 7. -3 is telling that I have moved left side on x axis. -7 is telling I have moved down side in y axis. यहाँ पे +2 क्या बता रहा है, +2 is telling I have moved 2 units. Okay, I made it wrong. Okay, is this, देखो what a 2 units is telling I have moved 2 units positive on right side. So see, this sign is very important, you will get to know which direction you are moving, left, right, up or down. And this is plus on y axis. This is how we work with position. Now let's come to this. Let's come to this part. I'm going from A to B, B to C. I'm going from A to B and B to C. Okay. Find a displacement vector of a body moving on a coordinate. Moving from coordinate 1,3 to 4,5 to 5, 6,8. अब देखिए ये कैसे करेंगे. See, displacement depends on initial and final position. Displacement depends on initial and final position. तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस करूंगा, इंटरमीडिएट पोजिशंस आर नॉट रिक्वायर्ड. सो सपोज मेरा पॉइंट ए है 1,3, तो मेरा 1,3 ये पॉइंट है ए, मेरा बी है 4,5, सी है 6,8. देखो ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसा फिर ऐसा. तो ये एबीसी मेरा क्या है, एक्चुअल पाथ है. दिस एबीसी इज माय एक्चुअल पाथ. बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ. तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा मेरा, बस एओसी को ले लो, क्या 5i प्लस 5j. ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. सो वेक्टर्स कुछ नहीं है जो आप 9, 10 में, सर यू हैव टेकन 5i 8.
ओके, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ यू सी नाउ वी डू वेक्टर। आपको दिख रहा है एबीसी इज अ ट्रायंगल, कैन यू सी एबीसी इज अ ट्रायंगल? ABC is a triangle. ABC is a triangle. So can I write AB plus BA, sorry ये C होगा, AB plus BC is equal to AC in vector form. Can I do like this? देखो A से B जा रहा है, B से C, तो पहले का टेल दूसरे के हेड में जा रहा है, AB plus BC equal to AC। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर एडिशन, मैंने जैसे बोला था। अगर हम इसको ट्राई भी करें तो ये वर्क करता है। देखो, नहीं समझा? वेक्टर पता है आपको? वेक्टर वेक्टर अभिषेक, ए बी सी। देखो मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। मैं ए से बी गया एक वेक्टर, बी से सी गया दूसरा वेक्टर, फाइनली क्या है? डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। आया समझ में? ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको तो वेक्टर्स बता रहा हूं हाउ इट वर्क्स, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। देखो ए बी क्या रहेगा? व्हाट इज ए बी? व्हाट इज ए बी? ए बी वेक्टर क्या है मेरा? ए बी वेक्टर इज 3i plus 2j, and what is my BC vector?